Hello students, this is Vinita Singh. If you like my video, please share and subscribe for further notifications. And today we are going to study chapter number 1, Nutrition in Plants from class 7th. At the end of this chapter, you will be able to define nutrition, describe autotrophic mode of nutrition in plants, explain the process of photosynthesis. You will be able to describe the heterotrophic mode of nutrition in plants, explain the different types of heterotrophic mode of nutrition. Let's come to our first topic, nutrition. So what is nutrition? The process by which all living organisms take food and utilize it to get energy is called nutrition. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना हम लोग खाते हैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए और जिनको एनर्जी को गेट करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. First one is autotrophic nutrition. In this kind of mode of nutrition, organisms make food themselves from simple substances like sunlight, carbon dioxide, and water. And these organisms are called autotrophs. Those organisms who perform the autotrophic nutrition are known as autotrophs. Next one is heterotrophic nutrition. In this kind of nutrition, animals and many other organisms do not make their food themselves and get food directly from the plants and other organisms. These organisms who perform the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. So, what is the process of photosynthesis? The process by which green plants can synthesize their own food from the carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and solar energy is called photosynthesis. इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें अपनी एटमॉस्फेयर में मिलती है और वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस, इन दोनों का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूज करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ये एक्सेल रिलीज क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. So there are raw materials, those which are used in the process of photosynthesis, they are known as raw material. Okay, stomata is one of them. You can see in the last picture also, water, carbon dioxide, sunlight, leaves, chlorophylls. In leaves, there are some tiny pores are present, and these tiny pores are known as stomata. Stomata opening and closing. When will be the stomata open and when it is closed, how we can identify it? So in daytime stomata is opened during the process of photosynthesis. आपको पता है कि सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो ड्यूरिंग डे टाइम ही होगा. मून के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, और वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है, और ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप सबको पता ही है क्या होती है. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपने एक्सेस वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है. So what's the product of photosynthesis? Carbohydrate and water molecules are joined together and they will give, in the presence of sunlight, carbohydrate and oxygen. Oxygen as a byproduct and carbohydrate as a main product. What is carbohydrate? Carbohydrate it's just in a sugar and it's in a complex sugar. So प्लांट्स की लीव्स में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये अपने सिंपल सुगर्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेकन टूट जाती है और स्टार्च
जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्टार्च के रूप में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या रहता है, ये फूड जो है एज अ फूड ये इसके अंदर स्टोर रहता है, और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, और ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी 6CO2 plus 6H2O in the presence of light and chlorophyll. It will give C6H12O6 and 6O2. So what is the significance of photosynthesis? Why we इसका फायदा क्या है हमारे इकोसिस्टम में, किस लिए होती है? तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है, ये हेल्प करती है टू कन्वर्स द सोलर एनर्जी इनटू अ ऑर्गेनिक मैटर दैट मेक बल्क ऑफ ड्राई मैटर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एंड इट आल्सो हेल्प इन द, इट्स आल्सो नोन एज प्राइमरी सोर्स, बिकॉज आपको भी पता है कि इधर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम लोग सभी लोग क्या होते हैं प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंड रहते हैं फॉर आवर फूड, फॉर शेल्टर, इन एवरीथिंग। फोटोसिंथेसिस जो होती है, ये इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारी एयर जो है वो भी प्योरीफाई हो जाती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, बैलेंस होता रहता है। आपको पता ही है कि सर्वाइवल के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, हमें इनहेल करना बहुत जरूरी है, और हम लोग क्या एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं उसको ऐसा अपने फूड बनाने के लिए उसको यूज करेंगी, और वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करती है जो हमारे लिए जरूरी होता है। Next one is heterotropic mode of nutrition. So there are four types of heterotropic mode of nutrition. First one is parasitic plants, second is saprophytic plants, third one is symbiotic plant, and fourth one is insectivorous plants. So first one is parasitic plants. Parasitic plants obtain their food directly from other plants, which are known as host plant. Example of parasite plant is कस्केट, अमरबेल। आपने देखा होगा नॉर्मली अमरबेल जो होता है किसी भी पेड़ की लिपटी हुई रहती है, वो क्या करती है अपने फूड को, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली अपना फूड जो है अगले दूसरे प्लांट के ऊपर रह के हमेशा से क्या करती है, अपना फूड जो है वहीं से ऑब्जर्व करती है या फिर उसको यूज करती है। Second one is saprophytic plants. Saprophytic plants obtain their food directly from the dead and decaying matter. ये normally जो dead और decay हो चुके हैं, मतलब जो खराब हो चुके हैं, उनसे अपना food जो है obtain करते हैं। इसके example जैसे कि आपने fungi देखा होगा, आपने देखा होगा normally यहाँ पे आप mushroom देख रहे हो, two types of आपको मैंने mushrooms की यहाँ पे pics दिखाई है। फंगी आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड है काफी दिन तक रखी है तो उसके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन फंगी टाइप लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे अचार की बॉटल्स हैं, अचार की बॉटल में भी आपने देखा होगा पहले व्हाइट लगता है फिर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, फंगस होते हैं, फंगी होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे अपने फूड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, those plants who live together and share their shelter and nutrients to from each other, and this kind of relationship is called symbiotic relationship। और जो symbiotic relationship को follow करते हैं उन plants को बोलते हैं हम लोग symbionts, मतलब एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि दो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो अपना शेल्टर और जो अपना फूड मटेरियल है, अपने न्यूट्रिएंट्स है, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आपने इसमें नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं आपका, तो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी प्लस फंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, फंगी क्या करेगा, उसके साथ रह के उसको अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा फर्स्ट पिक में ये लाइकेंस है और मॉस है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया गया है। आप काफी बार रेगुलरली नहीं तो कभी कभी तो आप कभी बीच पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनकी रॉक सरफेस जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, और आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको बीच रॉक्स पे देखने को मिल जाएगी, रॉक रॉक पूल्स में या रॉक बीचेस जो होते हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि बहुत ज्यादा आपने मतलब सुना भी होगा इसके बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। और आपको पता ही है कि हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को भी क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं, शेल्टर लेते हैं वहां पे, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। और उनके बदले में वो क्या करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन की सफिशिएंटी जो है उससे
मीट करवाते हैं, उनकी जो जितनी भी डेफिशिएंसी होती है तो उसे मीट करवाते हैं और उसको एफिशिएंट बनाते हैं उसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि 78% नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन फिर भी उसको डायरेक्टली प्लांट्स जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो सॉल्युबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं इनमें आते हैं जैसे पीज हो गए, आपके मटर के पौधे हो गए, ठीक है, ये ग्राम्स हो गई, तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं और उनके रूट नोड्यूल्स होती है और उनके अंदर क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सच प्लांट्स ग्रोज इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन पिट्जर प्लांट्स जो होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत पड़ती है, उनका क्या रहता है, ये जो पिट्जर प्लांट होते हैं नॉर्मली वहां पे ग्रो हो जाते हैं जहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिशियंट है, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में है। तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर ये एडेप्टेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको कुछ जूस टाइप दिख रहा है, ये क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस होता है। यहाँ से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये सीधा इसके अंदर खींचा जा रहा है मच्छर जो आपने देखा यहाँ पे इंसेक्ट जो है, और इस डाइजेस्टिव जूस में जाने के बाद ये टोटली क्या हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है, या फिर इसको इसमें यूज कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इंसेक्टिव और ये पिट्जर प्लांट्स में क्या होता है, इसकी लीव्स जो है वो मॉडिफाई होकर पिट्जर बन जाती है, और लीफ का जो अपेक्स होता है वो इसका पिट्जर का क्या बनता है, ये एप मतलब ऊपर का जो अपर कवर होता है वो बन जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कुछ की स्ट्रक्चर ऐसे भी होती है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में इतना ही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी वहाँ पे, आपके सवालों का जवाब दूंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।